Hello everyone. A very good evening to all of you guys over here listening to me. So what are you waiting for? Were you waiting for me, your Rakhi ma'am? Just for actually knowing the chapter-wise weightage in your coming JEE main examination? Yes, I caught you right. Yes or no? Yes, of course, ma'am. So today we are going to talk about what? We are going to talk about the weightage analysis for your coming JEE mains examination 2022, which was actually near. Fine. So over here, dear ones, before I just start, let me know if I'm audible and visible to you or not. If that's the case, we'll be starting ahead now. Yes. Before I move ahead, as I always say, that please hit the like button, share this particular session among your peer groups, and yes, do subscribe the channel for the further notifications of the classes on this very platform, Aakash Byju's YouTube platform. So dear ones, one more thing I want to talk about here, about the Aakash app. Aakash app for what? For your JEE preparation, wherein what you are going to get plenty of unique features. Basically, in this particular app, you are going to get the personalized help, personalized guidance, okay? And yes, that is the way which from where you can outsmart your competitors. Moreover, in this particular app, you are actually going to get the huge database of your mock examination, previous year papers, and also, of course, the skull crashers. I mean to say, the very difficult problems. Moreover, you are going to get the animated videos by which your difficult concepts are going to simplify. So, what are you waiting for? There is a link given in the description box. Click on that link, explore the app, and yes, just enjoy watching the video libraries in order to simplify your important and difficult concepts in one go, dear ones. So, do it now. This particular app is free for 14 days and I promise you, you won't regret that what I actually told about. Rather, you are going to thank me for this particular information. Isn't it? Yes, of course, ma'am. Moreover, in this particular app, you are going to see your educators, the star educators like NV sir, SM sir, GB sir, Apurv Mathu sir, and obviously more such educators which you basically like, okay? So, what are you waiting for? Just book your free trial today only. And yes, we need to actually outsmart our competitors in any way. So go for it and yes, enjoy learning now. Moreover, since our today's session is about the weightage of what? Weightage of the chapters that are actually going to come in your JEE main examinations, specifically for the chemistry paper. So over here, what I have done is that I have distributed what? I have actually distributed section-wise, fine, the percentage of organic chemistry, physical chemistry, and inorganic chemistry. What we see is that it's the physical chemistry which carries 38%, organic chemistry carries 34%, and it's the inorganic chemistry carries 28%. So here we are. What you need to do, since your examination is very, very near, you need to club two particular parts. Be pro in the two parts, okay? If you will be actually searching and looking for all the three parts that I should do this also, this also, this also, you will reach nowhere. So, better to actually club two parts which you are pro in, which you have in the confidence with. So, over here you can club physical chemistry with the organic chemistry, you can club physical chemistry with inorganic chemistry, you can club organic chemistry with inorganic chemistry, kind of like this. You can go away with this particular thing. And yes, my dear ones, over here, if I just talk about organic chemistry, what should I say? एक कहावत आपने सुनी होगी, एक पर्टिकुलर फ्रेज मेरे को याद आ रहा है, इट्स जो जीता वही सिकंदर, है कि नहीं? Yes, of course. So, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई रिक्वेस्ट यू गो विद इट. इसको आप प्लीज छोड़कर मत जाइएगा. रीजन बीइंग, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं. काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमने इसमें ये डाला वी गॉट दिस, इसमें ये डाला वी गॉट दिस. सो यू नीड टू एक्चुअली रिवाइज ऑल दीज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, ओके? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रियली रियली स्कोरिंग, ओके? इट विल बी एक्चुअली एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस इन योर एग्जामिनेशन. फाइन. सो इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्लीज आप मत छोड़ के जाइएगा. टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, yes, it's actually carrying the weightage of 38%, and in organic chemistry 28%. In inorganic chemistry, most of the things are
we need to actually learn, we need to actually memorize. ठीक है, so herein I'll be telling you which particular chapter is very important and which is not, which particular chapter carries what particular weightage. Okay, moving ahead, and if I just talk about the very first chapters, okay, the coordination chemistry and periodic table, from these two chapters we are actually going to get, okay, near about three questions from coordination chemistry, also from periodic table also. Three questions each basically. Talking about thermodynamics and gaseous state, 2 questions. Atomic structure, 2 questions. Chemical bonding, 2. Chemical and ionic equilibrium, 2 questions. Well, अगर मैं इन chapters को part वाइज डिवाइड कर दूं, जैसे कि if I just talk about part 1, okay, so part 1 में I'll say please study journal organic chemistry. ओके, बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चंस आते हैं. जीओसी अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो वो क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत इजी होंगे सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी इज बेसिकली दी फाउंडेशन. जीओसी अगर आपको आता है, मेजर प्रॉब्लम्स आपसे अच्छे से इजीली सॉल्व हो जाएंगी, काफी हद तक मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. इट्स एक्चुअली द बेसिक्स है ये यहाँ पर. तो जीओसी को तो करके जाना है. देन टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पार्ट 1 में मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे भी टिक कर रही हूँ. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सिंस यहाँ से 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाता है, एंड कॉन्सेप्चुअल तो आता ही है. फाइन, यस. टॉकिंग अबाउट अमीन्स यहाँ मैं कहना चाहती हूँ नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, जहां से नेम रिएक्शंस आती हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है. हम क्या सोचते हैं, हमने 11th के पूरे चैप्टर्स कर लिए, हमने 12th के सारे चैप्टर्स कर लिए, लेकिन एंड आते आते इट्स द अमीन्स जो बिल्कुल लास्ट में होता है, और हम मोस्टली छोड़ देते हैं. छोड़ना नहीं है, सबसे पहले इसी को ही करना है. ठीक है. टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, यस, हाइड्रोकार्बन्स भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट. फाइन, क्लियर. एंड टॉकिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये पार्ट 1 में है. इन चैप्टर्स को आपको करके ही जाना है. ओके, वेल, अगर मैं आपको बताती हूँ रिगार्डिंग पार्ट 2, अगर मैं पार्ट 2 के बारे में बात करती हूँ, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैम कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ. बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, लिख लीजिए आप. बायोमोलिक्यूल्स में देखा गया है कि इट्स 2018, 19, 20 एंड 21 क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का ऑब्वियसली. फाइन, क्वेश्चन डू कम, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, आप इजीली कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं. ओके, सॉल्यूशंस, यहां से मोल फ्रैक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फाइन, ठीक है, इसको भी करना है. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, बकेट 2 की बात यहां कर रही हूँ. तो पार्ट 2 में मैंने बताया बायोमोलिक्यूल्स, सॉल्यूशंस बताया मैंने आपको, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां से KMnO4 और K2Cr2O7 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कंपाउंड्स हैं. यहां पर मोस्टली हमें ये पता चलता है कि इसको डालने से ये मिला, इसका क्या कलर है, इसको डालने से ये मिला, इसका क्या कलर है, काइंड ऑफ लाइक दिस. तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कीजिएगा. स्ट्रक्चर ऑफ एटम से देखा गया है कि नोडल प्लेन्स एंड नोड्स के क्वेश्चंस आते हैं. यस, मेटलर्जी से स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं, इजी है, थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन स्कोरिंग भी है. यस. टॉकिंग अबाउट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ली चार्टरस प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्वेश्चंस आते हैं, तो छोड़ के मत जाइएगा. टॉकिंग अबाउट 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिनको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है. जिनको फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती है तो उनको कहूंगी मत करके जाइएगा. वो चैप्टर्स हैं केमिकल काइनेटिक्स और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल्स हैं. अगर मोल्स आपको 11 से नहीं आया, 2 साल में नहीं आया, तो अब इतने दिनों में मोल्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा. सो बेटर टू लीव इट. ओके, रादर फोकस ऑन अदर चैप्टर्स. फाइन, ओके. मोर ओवर बकेट 2 में मैं और चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, क्वेश्चन आता है. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पानी में कितनी है, ताकि यार हमारे दांत ना खराब हो सके. ऑफ कोर्स एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स क्वेश्चन आते हैं. हाइड्रोजन, यस. पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर मैं बात करती हूँ तो ब्लॉक 15, 16 एंड 17 एंड 18 इनको जरूर करके जाइएगा. 13 एंड 14 को फिर भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं. 15, 16, 17 एंड 18th ग्रुप
पी ब्लॉक, ओके। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आता है, तो इसको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता आपका, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शंस में से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन मेथड, ओके, विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, फाइन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इजी कॉन्सेप्ट भी है, इजीली समझ में भी आ जाता है। तो व्हाई टू लीव दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स, नो यू डिड नॉट टू लीव देम। तो मैंने आपको एक तरह से पार्ट 1 बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, पार्ट 2 बता दिया कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। वेल यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने ये भी बताया है कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यू प्लीज नोट इट डाउन। टॉकिंग अबाउट इन मूविंग अहेड, और अगर मैं बकेट 3 की बात करती हूं तो यहां पर एक बार आप पहले चीज देख लीजिए, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको जस्ट बताया। सो ओवर हेयर हमें यहां पर 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंट केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बताया मोल कॉन्सेप्ट 1, रिडॉक्स 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1, केमिकल काइनेटिक्स 1। सो मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स तो भाई वही बच्चे करके जाएं जिनकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग है, अदरवाइज लीव देम। अब पार्ट 3 में जो मैं आपको चैप्टर्स बताना चाहती हूँ जो आपको करने हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं भी करके जाओगे तो भी चलेगा, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, छोड़ के जा सकते हो, क्वेश्चन आता है मैं मानती हूं, बट आप इसको छोड़ के जा सकते हो, फाइन। हमें फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जहां से स्कोरिंग आपको अच्छे से मिल जाएगा। वेल, टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एंड 14, इसको भी आप एक बार होल्ड पे रख सकते हैं सिंस एग्जाम नियर है। टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जहां पर आप सॉल्ट्स एनालिसिस पढ़ते हैं एंड देन एक क्रोमेटोग्राफी वाला पोर्शन आता है, ऑर्गेनिक वाला प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक वाला प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। सो फॉर नाउ आप इनको होल्ड पे रख दीजिए। आप 15 से 18 घंटे इनको याद करने में टाइम स्पेंड करेंगे। इट्स बेटर टू फोकस ऑन दोज चैप्टर जहां बहुत ज्यादा स्कोर आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर है। वेल, अगर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन कभी आता है और कभी नहीं भी आता है, बट फिर भी मैंने यहाँ लिखा है सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो सॉलिड स्टेट में आपको मैं सिंपली कहूंगी फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको जरूर करके जाइएगा, ठीक है, उनको जरूर से जरूर करके जाएगा, फाइन। नाउ मूविंग अहेड, और चैप्टर्स के वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, एंड आप यहाँ पर देख लीजिए कितने क्वेश्चंस इन पर्टिकुलर चैप्टर्स से आते हैं। वेल, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी एंड जो इन पर्टिकुलर स्लाइड्स पे इंफॉर्मेशन है, इन दोनों को कोलैबोरेट कीजिए एंड यस यू नीड टू गो अहेड कि हमें क्या करना है। वेल, मैंने आपको बता दिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में क्या क्या आपको करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है। सो इट्स बेटर डियर वंस, गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। वेल, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप हमेशा कहते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। लेट मी टेल यू दैट यू विल नेवर फाइंड टाइम, फाइन, यू हैव टू मेक द टाइम। आपको अपने लिए टाइम क्रिएट करना ही पड़ेगा, फाइन। सिंस द एग्जाम्स आर नियर, मैंने आपको एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी बता दी है किन पर्टिकुलर चैप्टर्स को आपको एलिमिनेट आउट करना है और किन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे आपका फोकस होना चाहिए, फाइन, क्लियर है। सो माय डियर वंस, one thing I'll just say for sure, and it's a saying that if you can't handle the stress, you can't manage the success. Fine, be the sun of your solar system. With this particular thing, I end my session over here. Thank you for being there. Thank you for listening to me. And yes, all the best for your coming examinations.